Hello students, we'll welcome I welcome all of you, and we will continue the series of lectures, this new series that I have started about the laws of electrolysis. I am very sure you must have seen the part 1. In part 2 we will go with certain formulas. So what we are doing, we are passing electric current. We are passing electric current through a chemical solution, through a electrolyte. We know what is electrolyte. Electrolyte is a chemical compound which is passing current, and we do this in an electrolytic cell. Now we'll again see the concept of electrolytic cell. Electrolytic cell contains a container, and in this container we have taken say, all right, we have taken a chemical substance that is filled with this, and this solution, this is our chemical compound, and this is known as the electrolyte. This is our electrolyte, and electrolyte contains free cations and free anions. Free means they are able to move. And what is the total charge? Total charge is 0. So this is the concept of electroneutrality. Quite similar to what we have discussed. We'll continue discussing this, and we have added 2 metallic rods, and with the help of these metallic rods we will pass current. I will put +1 here, and I will put the negative terminal of the battery over there. So in the electrolytic cell, what we do, we are converting electrical energy. We are converting electrical energy to a chemical energy, or we see a chemical change here. And what is the chemical change that we observe here at the anode? Anode is itself plus, it will attract anions. Anode is positively charged, it will by force absorb. Anode will absorb electrons from anions, and loss of electron from anions. So electrons will lose electrons, so this is the oxidation process. And what happens at the cathode? At the cathode we see cathode is negatively charged. Cathode is negatively charged, it will attract cations, and cations, the cathode will give electrons to cations. Gain of electron by cations. So cations will undergo the reduction process. In the previous lecture we have also discussed 2 basic points. Again, at the cost of repeating myself, 1 Faraday is equal to 6.022 into 10 to the power 23, the Avogadro number, multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज अगर होगा, इसी को बोलते हैं 1 फैराडे. Theoretically 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे. दिस इज़ द हिस्टोरिकल वैल्यू, और हम लोग इसी को ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं. वैसे इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा. अब हम लोगों ने सीखना है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड हाउ कैन वी यूज़ देम इनटू द फॉर्मूला. सो चार्ज denoted by Q, we will use 2 formulas. Q is equal to N into E, where N is
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passed and E is the charge of one electron. ठीक है. There is one more formula that is used basically in physics. चार्ज, क्योंकि वहाँ पर तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं काउंट करते हैं, वहाँ पर तो हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं, चार्ज Q इज़ इक्वल टू I इंटू T. I इज़ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर्स में, एंड T इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द करंट इज़ पास्ड. तो अगर हम ये कहें कि इसी को दोनों तरफ से हम लोग जोड़ लें, दैट ये दोनों तो एक ही चीज़ है, ये हो गया इसका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो लेट अस सी. If I say 2 amperes of current is passed for 2 minutes, calculate the charge. अगर हमें इस तरह से दिया है तो चार्ज कैसे आएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, एंड दिस विल बी 2 इंटू, let us convert this into 60 because हमको SI यूनिट में करना है. 2 2 ज़ा 4 and 4 6 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, हाँ इतने कूलम्स चार्ज हमने पास कर देना है. सो ये हो गया. अगर इसी से हमसे बोल ले कि नहीं साहब इसमें ये बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे, तो अब हम पता चल जाएगा हमको Q इज़ इक्वल टू NE. तो यहाँ पर देखो Q आ गया 240 और N हमें पता नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो N की वैल्यू आएगी 240 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो इस तरीके से हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये सारा चीज़ गैदर कर लेते हैं. देन द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखो पहली लॉ क्या कह रही है, when 1 Faraday of charge is passed, when 1 Faraday charge is passed through a solution, we see the oxidation at anode and reduction at cathode. तो हमने देखना है प्रोडक्शन ऑफ एट एनोड. एनोड पे कुछ डिपॉजिट होगा और कुछ होगा प्रोडक्शन एट कैथोड. तो इसमें आएगा 1 इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ भी आएगा 1 इक्विवेलेंट वेट. जब हम 1 फैराडे करंट पास करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इक्विवेलेंट वेट. 1 इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट शायद तुम लोग को अभी नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट अस अंडरस्टैंड इन सम मोर सिंपलर टर्म्स, ताकि हमारा इक्विवेलेंट वेट का भी कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए. अच्छा देखो कि अगर हमने ये ऐसे कुछ असेंबली बनाया है, लेट अस मेक एन असेंबली हियर, यहाँ पर है A और यहाँ पर है देखो ऐसा B और यहाँ पर है ऐसा C कंटेनर, और इसमें हमने डाल रखा है सपोज़ करो CuCl2 का सॉल्यूशन कुछ ऐसा डाल रखा है, यहाँ डाल रखा है AgCl और यहाँ कुछ हमने डाल रखा है AlCl3, ऐसा कुछ डाल रखा है, इसके सॉल्यूशंस डाल रखे हैं, और यहाँ से देखो हमने करंट पास करना शुरू कर दिया है. सीरीज़ में इसको जोड़ते हैं.
ये हुआ प्लस, और इसको हमने इससे जोड़ देना है, इसको हमको इससे जोड़ देना है, और इसको हमको जोड़ देना है माइनस से। ऐसा कुछ असेंबली बनाया है। वी हैव टेकन 3 containers. In one container we have added CuCl2, in other container we have added AgCl, and in the third container we have passed AlCl3. और टोटल करंट जो पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं 1 फैराडे। वी आर पासिंग 1 फैराडे चार्ज या करंट जिसको बोलते हैं। तो ये 1 फैराडे में ही हमने इसको पास कर दिया। तो अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पर भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और यहाँ पर भी हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चलो कंटेनर ए में क्या होगा, कंटेनर ए में एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पर क्या आने वाला है, एनोड पर देखो Cl आने वाला है, एनोड पर आएगा Cl माइनस। सो Cl माइनस से हमको मिलेगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आया Cl। तो हमें Cl कितना मिलने वाला है, दिस Cl विल कन्वर्ट टू Cl2। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखो 1 मोल है, दिस इज गेनिंग लूजिंग 1 मोल, तो ये 1 मोल आया, तो ये Cl2 का कितना आ जाएगा, हाफ मोल। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट द कैथोड। कैथोड पे देखिए Cu2+ है, इसको 2+ इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है, तो कॉपर डिपॉजिट होना है। तो इसका रेशियो देखो 2:1 है, लेकिन यहाँ पर लिया है 1 मोल, सो वी विल सी द डिपोजिशन ऑफ हाफ मोल ऑफ कॉपर। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ Ag+ डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, और हाफ मोल ऑफ Cl2 डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ देखो क्या डिपॉजिट होने वाला, 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने वाला है, और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट होने वाला है। तो हमने यहीं पर देख लेना है जो हम बोल रहे थे कि 1 इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट divided by valency. Equivalent weight is equal to atomic weight divided by the valency, और ये इतना ही हमारा डिपॉजिट होगा। नाउ लेट अस सी फॉर एग्जांपल, ये वाला ऊपर तो तुम लोग अभी वर्कआउट करोगे, ये तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पर ये 2 इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तुम लोग को एटॉमिक मास अभी याद भी होगा, याद तो उसका भी है, जैसे देख लेना करके। अगर हम कह रहे हैं कि ये NaCl का सल्यूशन है, ये है हमारा प्लस और ये है हमारा माइनस, तो Na+ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल। तो Na का देखो, अगर ये है हमारा 1 मोल, तो ये डिपॉजिट होगा 1 मोल, सॉरी ये गेन करेगा 1 मोल एंड डिपॉजिट विल बी 1 मोल। अब हम लगाते हैं अपना इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ये 1 फैराडे है, 1 फैराडे ऑफ करंट इज पास्ड, तो इसका आएगा इक्विवेलेंट वेट। कितना वेट आएगा इसका वेट होगा इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। और इक्विवेलेंट वेट का क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज डिपॉजिटेड। 1 फैराडे ऑफ करंट विल डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। देखो ज़रा, अगर यहाँ पर कैल्शियम का कंटेनर लेंगे, इफ़ वी टेक द कैल्शियम कंटेनर, यहाँ पर कैल्शियम का कोई सॉल्ट लिया है, तो 1 फैराडे विल डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। और 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम का वेट कितना है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो ये कितना आएगा 20 ग्राम्स। इस तरीके से देखो वो कह रहे हैं कि आप साहब बताइए एल्यूमिनियम में अगर हम पास कर दें, इफ़ वी पास थ्रू एल्यूमिनियम, ये अगर हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम का सॉल्ट लिया है और 1 फैराडे जब अब करेंगे, तो 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू
27/3, यानी कि जो इक्वलेंट वेट है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। ठीक हो गया, इस कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। अब देखो कि इसी तरह से अगर हम कहें कि नहीं साहब निगेटिव आयंस का कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर अगर हमारा Cl माइनस है तो 1 फैराडे विल डिपॉजिट 1 इक्वलेंट वेट ऑफ Cl। 1 इक्वलेंट वेट ऑफ Cl कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाई 1, इसका वैलेंसी ही 1 है, यानी कि 35.5 ग्राम ऑफ Cl। तो ये ऐसा हमारा Cl डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखो, तो अगर हमने क्या करना है कि NaCl में अगर हमने 1 फैराडे पास किया तो हमारा सोडियम का वेट कितना आएगा 23 ग्राम, और Cl का वेट कितना आएगा 35.5 ग्राम। तो ये हो गया 1 मोल, और ये कितना हो गया Cl2 के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ मोल। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, राइट in the comment section understood. If not understood, you will understand in part number 3, but keep watching.